So this is going to be the last topic of admin training, data management. So data management is actually how you handle the bulk of data inside the Salesforce. So we are going to learn two different techniques for this. One is the data loader. The second is a data import wizard. So if we wanted to perform any operation, it could be insert operation, it could be update, delete, merge, whatever. If I wanted to perform any kind of operation on the bulk amount of data, so what should be the technique we follow? That is what we are discussing. See, वैसे तो with the user interface, if I go to any object, probably if I go to this account or hiring manager, so I have this form. And if I fill this form, if I enter the details I save, so I could probably save one record. That is what. So using the user interfaces, you can enter one record at a time. User interface पे आप जाके ये form भरिए, and then you can create one of the position record, you can create one of the hiring, one candidate, one. So user interface provide you this facility. Now what is the problem with this is that कि आप एक समय पे ना एक ही record insert कर सकते हो. So now if this is a requirement कि अगर हम मान के चलो कि if we wanted to insert 1000 record at a time, and if you wanted to insert 5000 record at a time, obviously this is not the technique. Obviously this is not the technique, because यूजर इंटरफेस पे जाओगे तो if see अगर आप एक एक रिकॉर्ड एंटर करोगे तो क्या आप उसे 1000 बार एंटर करने वाले हो, and you probably going to have this operation 1000 times. तो ऐसा नहीं होता है. Obviously this is not the technique. So there must be some workaround for this, obviously. तो वही हम पढ़ रहे हैं कि we are going to understand this कि if we wanted to perform certain operations on the bulk amount of data, it could be your insert operation. आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो inside any object. If you are updating the record, previous record, कोई भी records हैं उसको आप update कर रहे हो. If you are performing upsert operation, upsert is a combination of insert plus update actually. तो मैं दिखाता हूँ कि what exactly upsert, how to perform the upsert. And if you wanted to delete certain records from the object, तो आप कैसे करोगे? तो single record के लिए your user interface is going to find, है ना? यहाँ से आप कर सकते हो. You could go to the account object and press this new button, enter one record at a time, then save it like this, So for entering one record, for entering two records, probably 3, 2, 5, okay, this technique is fine. But what about if I wanted to insert 5000 record, 500 record even, not 1000, chalo, 500 bhi karna hai. So obviously we could not follow this, we could not repeat the same process 500 times. तो यही टेक्निक जो है आपका, ये आप सीख रहे हो डेटा मैनेजमेंट में. सो डेटा मैनेजमेंट बेसिकली डील्स data management basically deals with those techniques which with you actually becomes you actually understand how to perform the operations on a more amount of data, the bulk amount of data. So उसके लिए दो टेक्निक्स हैं आपकी. एक है आपका डेटा इंपोर्ट विजार्ड and the second is data loader tool. So first of all, this import and the export wizard, these are actually something which is present there inside the org. तो ये ना built in अपने tools होते हैं. These are also the tools, but this is built in tools. तो देखा जाए तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, इसके साथ में benefit क्या है और इसके साथ drawbacks क्या है, तो वो भी हम discuss करने वाले हैं. So these are the two wizards. Wizards matlab these are the tools actually with which actually you can perform the import operation, and there is a separate tool to perform the export operation. Importing means something you are getting something from outside to the Salesforce. Now, for example, if I wanted to store 1000 hiring manager records, I wanted to insert 1000 hiring manager records. तो मैं बाहर से लाऊंगा उसको, कैसे लाऊंगा, कैसे store करूंगा. That is something called as importing. Exporting means all of the record, how many records are there. Let me press this go button, so I can see that there are altogether 12 records. If I wanted to export this record, मैं यहाँ से इसको बाहर लेके जाऊँ. CSV फाइल पे होता है सारा ये, Excel शीट्स बनती हैं इसकी. With the help of this CSV फाइल आप चाहे import भी कर सकते हो, आप export भी कर सकते हो. तो अगर मैं इसको बाहर लेके जा रहा हूँ, if I am actually transferring this to outside world, तो उसको export operation बोलते हैं. If you are transferring something from the outside world to the Salesforce object, तो आप उसको importing बोलते हैं. So for that, for both of the purpose, either you are performing this import operation, performing the export operation, you actually require one of the CSV file. वो कैसे बनानी चाहिए? So everything we are going to learn in that. But what is the advantage with this data import and export is that these are the inbuilt tool. ये हमारे org में ही रहते हैं. Let me show you that. So go to the setup menu. See, navigation I have already written. Don't worry about the navigation. So let's go to the setup menu. Within the administer menu, you have a data management. See here, you have a data management. So inside the data management, you have both tools. For importing the data, you have data import. For exporting the data, you have data export.
ठीक है. These are two tools and these are built-in tools. They are present inside data management option of this area, है ना, अपने org में ही रहता है. But then these have few limitations out there. And there are few drawbacks that are associated to this. That is why we are going to fill the second technique, data loader. तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा. Because say they asked this in the interview, if you have this data import and the export built in inside the Salesforce, why should we go for the data loader? Because data loader na is an on-premise tool. On-premise मतलब this is the only tool of Salesforce that needs to be installed. आपको अपने लैपटॉप पे पीसी पे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. बाकी देखो ना, आप आज तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं सेल्सफोर्स में, आपने कहाँ पे काम किया? आपने यूआरएल पे काम किया है. हमने कोई भी चीज इंस्टॉल थोड़ी ना की आज तक थ्रू आउट द ट्रेनिंग, राइट फ्रॉम दैट क्रिएटिंग द डेवलपर अकाउंट से लेके आज तक आपकी पूरी जर्नी खत्म हो गई एडमिन की. दिस इज द लास्ट टॉपिक. आज तक हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं करा है, बट दिस इज द ओनली सेल्सफोर्स सप्लाइड ऑन प्रीमाइस टूल. ये डेटा लोडर ही इकलौता ऐसा टूल है दैट्स नीड्स टू बी गेट इंस्टॉल्ड. ये आपको अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ता है. तो फिर सवाल क्या बनता है यहाँ पे इंटरव्यू पे कि इफ यू ऑलरेडी हैव दिस डेटा इंपोर्ट विजार्ड, जब आपके और के अंदर ही है एंड यू हैव डेटा एक्सपोर्ट विजार्ड, तो व्हाई शुड आई इंस्टॉल दैट डेटा लोडर? बिकॉज बोथ ऑफ देम परफॉर्म द सेम ऑपरेशन. डेटा लोडर भी वही काम करता है इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग का. योर डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड परफॉर्म द सेम ऑपरेशन. तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू पे. नाउ हाउ टू गिव द आंसर? तो हमको ना इसके बारे में फिर सारी चीजें पता होना चाहिए. प्रोबेबली सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, what are the limitations of data import and the export. That is why these are the reasons which tell us to go for the data loader as an option. Otherwise तो हाँ, ये we are agreed that these two are the in premises tool, है ना, ये in premise में अपने premise के अंदर ही है. These are present inside the data management option, right? So inside the administrator menu you have this option data management. Inside the data management you can see that there are things related to data importing and the exporting. तो I am totally agree with this fact, but then these have some limitation. तो वो लिमिटेशंस होने की वजह से मेरे को वहां जाना पड़ रहा है. सो व्हाट आर दोज लिमिटेशंस? तो चलो उसके बारे में पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे. सी, your import operation, data import will only perform import first of all. Export will perform only export. तो यहाँ से शुरुआत करते हैं इस चीज की. मतलब we have a two separate tools for importing as well as exporting. तो if I wanted to perform import, I should go with this data import option. If I wanted to perform export operation, I should go up with this export. ठीक है, पहला तो ड्रॉबैक ये हुआ. Please write it down because I actually have not created certain differences. ऐसा कुछ बनाया नहीं है मैंने. And you need to, अभी कभी अगर ये डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ गया कि what is the difference between import and the data import wizard and this data loader, तब भी आपको ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, this discussion will going to help you to find out the points and all that. तो अभी ये जो चीजें बता रहा हूँ ना, तो प्लीज इसको लिखते चलो आप. तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस या पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है अपना, कि यहाँ पे कैसा है कि there are two separate tools to perform the import and export operation. Whereas if you go with the data loader, you know, close some of the tabs. Whereas if you go with this data loader, तो data loader में कैसा है कि with the same tool you all have, I mean you have the this insert, update, upsert, delete, hard delete. These are the I mean these are what these are actually insert operation. These are importing operation, and you also have the export operation. With this all operation, with this all, you can perform the import. ठीक है, and you have in a separate in the same tool you have to you have export and export all to perform the export operation. So for data importing and exporting there is only one tool. पहला तो एडवांटेज ये है यहाँ पे. ठीक है, पहला एडवांटेज अपने को ये नजर आ रहा है कि डेटा लोडर पे I have both. I have in the same tool. I have both options. I have options to import. I have options to export. Whereas if I go with this, you know, built-in option, तो मेरे को दो अलग-अलग tools पे जाने पड़ते हैं. To perform the importing, I need to go with this. Perform the exporting, I need to go with this, like this. पहला drawback. दूसरा क्या है कि you know it import wizard will only supports you insert and update operation. So let's see that. If I open this import wizard, you know, data import wizard, so it's going to perform, you know, it will actually, yeah, it will actually perform only few, I mean these are the steps, and it will only allow you to perform only few operations, you know. It will only allow you to perform few operations. One is insert and one is update. Okay, one is insert and one is update. मैं दिखाता हूँ आपको. Let me select any object. What you want, add or update, add or update. But you don't have anything, and this is upsert actually. Add new and update existing. This is upsert. So this actually performs only three operations: insert, update, and third is upsert. Upsert.
So it only performs a 3 operation. This import wizard supports you 3 operation, but here you don't have any option to delete. But if you go with the data loader, it have insert, it have update, it have upsert, along with it have delete, even it have the hard delete. Now, what's the difference between delete and hard delete? That is also the point of discussion right now. आज हमारा ये होने वाला है, even with the difference between export and export all, ये भी आज हम discuss करने वाले हैं. तो काफी सारी चीजें आज अपने discussion में आने वाली है. So your import wizard merely support only 3 operations: insert, update, and upsert. But with the data loader, you have all DML operations, all of the manipulation operations. Like you have insert, you have update, you have upsert, you have you have delete options also, and you have delete all option, hard delete actually, not all, hard delete. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग. ये भी सेकंड पॉइंट आप रख सकते हो कि डिफरेंस में. तीसरा एक पॉइंट है कि योर इंपोर्ट विजार्ड ओनली सपोर्ट फ्यू ऑफ द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, एवरी कस्टम ऑब्जेक्ट, बट इट ओनली सपोर्ट फ्यू ऑफ द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. दैट मींस इट एक्चुअली हैव डेटा इंपोर्ट विजार्ड टिपिकली सपोर्ट ओनली 5 स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स: अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड, कैंपेन मेंबर एंड सॉल्यूशन. ठीक है. It although it support every custom object, लेकिन standard पे सारी object support नहीं करता है आपका. But if you wanted to perform insert operation using data import wizard, you can perform it on all these operations. Standard की बात करें. If you wanted to perform update operation, you could only perform it only on the 5 object. If you wanted to perform upsert operation, you could only perform in these 5 objects. What are those? Account, contact, lead, campaign, and solution. Campaign member, not campaign. Campaign member is a separate object. It's a junction object if you remember. So campaign भी नहीं, campaign member. ठीक है. And the solution. So these are the only 5 objects that are supported. See, account and contact, lead, solution. ठीक है. And campaign member. What kind of data you are looking to import? If you go with the custom, you have every option: author, book, books, candidate, customers, hiring, position, samples. These all are the custom object that we created. So I am agree that data import wizard although supports every custom object, but what about the standard? What about the standard object? So as a part of a standard object, using the data import wizard, I can only perform the operation on 5 standard objects, not more than that. This is one of the drawback. What are those objects? Account, contact, lead, solution, campaign member. These are the only 5 supported objects. 1, 2, 3, 4, 5. These are the only 5 supported objects what the data import wizard actually supports. Now here this is not a problem. I'll show you. This is a list. अभी तो मुझे login करना पड़ेगा. Login की steps सिखानी है आपको, because if I wanted to perform any operation, I first of all need to log in this. So I'm going to tell you the steps of login. But after login, you will see that data loader will support every object, every standard, every custom object. Here there will be the list of every object. सारे ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना. पहला पॉइंट क्या है आपका? यू हैव 2 सेपरेट टूल्स फॉर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग. पॉइंट नंबर 1 है आपका ये. And in the data loader, with the same tool, we can perform both import as well as export operation. The second point of difference is what? It only supports 3 operations: insert, update, delete. Insert, update, upsert. But your data loader have insert, update, upsert along with delete and hard delete also. This is for the second. The third is what? It only supports 5 standard objects. What are those? Account, contact, lead, campaign member, and the solution. These are the 5 standard objects that is being supported, although it supports all custom object. ठीक है. A data loader क्या? Every custom object, every standard object. This was point number 3. Now point number 4 is about the capacity. See, using data import wizard, I could only process 50,000 of the records, not more than that. Using data import or export, जो भी है, दोनों capacity same है. So with this wizards, I could only, with these tools, I could only perform the execution, perform the processing, matlab your insert, update, whatever operation. You could perform this operation only on the record 50,000. I mean 50,000 of the records, not more than that. Data loader की कैपेसिटी जो है, डेटा लोडर की कैपेसिटी है 5 million records. I have written this, don't worry. 5 millions of the record. 1 million is 10 lakh. So 5 million is 50 lakh record. 50 lakh record. तो मैं एक थोड़ा सा आज आपको एक चीज बताता हूँ डेटा माइग्रेशंस के बारे में. ठीक है. एक चीज जो आप सभी थोड़ा सा याद करो. ठीक है. I want every one of you to. अगर आपको if you go with data import, ठीक है, if you go with data import, you can process up to 1 instance, 100,000, 10,000,
50,000 ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, यू कैन गो विद दिस, ठीक है, 50,000 ऑफ रिकॉर्ड। अगर आपकी कैपेसिटी इससे ज्यादा है, यू नो, इफ यू वांटेड टू प्रोसेस मोर देन दैट डेटा, इफ यू वांटेड टू प्रोसेस मोर देन दैट डेटा, तब किस पे जाना? डेटा इंपोर्ट से। अगर इससे ज्यादा कैपेसिटी है आपकी, इफ यू वांटेड, अगर इससे ज्यादा कैपेसिटी, तब आपको जाना चाहिए डेटा लोडर पे, ठीक है, तब आपको डेटा लोडर पे जाना चाहिए, बिकॉज डेटा लोडर कैन 5 मिलियंस, 5 मिलियंस यानी 50 लाख, 5 मिलियंस, 5 मिलियंस मतलब कितना होता है? 5 मिलियंस कम्स आउट टू बी, 5 मिलियंस इज हाउ मच? 50 लाख। सो 1 टेंस, 100,000, 10,000, लाख और 10 लाख, इतना रिकॉर्ड आप एक ही बार में प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कैन प्रोसेस, 5 मिलियंस ऑफ द रिकॉर्ड। अगर आपको इससे भी आगे जाना है ना, इससे भी आगे जाना है, और आपके पास में इससे भी ज्यादा डेटा एंड यू वांटेड टू प्रोसेस दैट डेटा, एंड यू वांटेड टू प्रोसेस दैट डेटा, अगर आपको इससे भी आगे जाना, डेटा लोडर की कैपेसिटी से भी आगे जाना है, तब आपको किस पे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक डायग्राम छोटा सा बना रहा हूँ, इसको सभी लोग बना लो अपने पास में, देन यू शुड वर्क विद द बैच प्रोग्रामिंग। बैच प्रोग्रामिंग आगे चल के है ये कंसेप्ट, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। देयर यू कैन प्रोसेस 50 मिलियंस ऑफ द रिकॉर्ड, देयर यू कैन प्रोसेस 50 मिलियंस ऑफ द रिकॉर्ड, 50 millions of the record. So how comes 50 millions? 50 millions होता है 5 करोड़, 5 करोड़, 5 crore of the record. Here 50 lakhs of the record you can process at a time. तो this is what data import wizard की capacity है 50,000. If you wanted to process, अगर आपको कोई भी ऑपरेशन, इंसर्ट, अपडेट, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्रोसेस करना मतलब ये ऑपरेशन, इससे भी ज्यादा करना है, तो आप डेटा लोडर पे चाहिए। डेटा लोडर कैन प्रोवाइड यू फैसिलिटी टू प्रोसेस 5 मिलियंस ऑफ द रिकॉर्ड, 50 लाख ऑफ द रिकॉर्ड। अगर आपको इससे भी ज्यादा है, तो आपको फिर डेवलपमेंट पे जाना पड़ेगा, एंड यू नीड टू राइट डाउन द बैच प्रोग्राम्स, यू नीड टू राइट डाउन द बैच प्रोग्राम। लेट मी शो यू दैट। दीज आर द बैच प्रोग्राम्स, दीज आर द बैच प्रोग्राम्स, ठीक है, दीज आर द बैच प्रोग्राम्स, ठीक है। ये होता है आपका बैच प्रोग्राम। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे बैच प्रोग्रामिंग आती है, स्केड्यूलेबल अपेक्स आता है, फ्लेक्स प्रोग्रामिंग, फ्यूचर एंड द क्यूएबल इंटरफेसेस, उसमें से ये होता है बैच प्रोग्रामिंग, ठीक है। So batch programming ये है, this is what the batch programming is. There are 3 steps to design the batch program, and चौथा उसको execute करना। तो with this programming, with this programming आप 50 millions of the record process कर सकते हैं। तो 50 millions of the record comes out to be 5 crore. Just a second guys, 1 second. तो ये एक थोड़ा सा ना, ये कैपेसिटीज याद रखो, ये इंटरव्यू के टाइम पे काफी काम में आने वाली है आपको, तो ये कैपेसिटीज को याद रखो। तो तीसरा जो आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, आप ये पुट अप कर सकते हो कि डेटा इंपोर्ट विजार्ड से आई कुड ओनली प्रोसेस 50,000, अगर मुझे इससे ज्यादा जाना है तो गो विद द डेटा लोडर वेयर आई कैन प्रोसेस 5 मिलियंस यानी 50 लाख ऑफ द रिकॉर्ड आई कैन प्रोसेस एट अ टाइम, ठीक है। और यहाँ फिर जो भी फायदे नुकसान थे वो तो मैंने आपको बता दिया। सो डेटा इंपोर्ट विजार्ड जो है, इसकी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, एंड दिस इज व्हाई वी गो फॉर द डेटा लोडर्स, ठीक है। तो डेटा इंपोर्ट विजार्ड के साथ अगर कोई इकलौता फायदा है, इफ समथिंग व्हाट यू गेट इन, अगर कोई इकलौता फायदा है इसका, तो वो यही है कि दिस इज एन ऑन प्रीमाइस टूल, सॉरी, दिस इज एन इन प्रीमाइस टूल, ये आपके और के अंदर होता है। दिस इज द ओनली बेनिफिट व्हाट आई गेट विद द डेटा लोडर्स। तो डेटा लोडर के साथ में सिर्फ एक ही डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड के साथ सिर्फ एक ही फायदा है, यू ओनली गेट वन थिंग, कि ये आपको और के अंदर मिल जाता है, ठीक है, डेटा इंपोर्ट भी और डेटा एक्सपोर्ट भी, बाकी इसमें कोई बेनिफिट नहीं है ऐसा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि फॉर परफॉर्मिंग द बल्क इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग वी ऑलवेज गो, अच्छा उसमें फिर ये भी है ना कि इंपोर्ट के लिए अलग, एक्सपोर्ट के लिए अलग, तो उससे बेटर क्या होता है कि ऑलवेज इंस्टॉल दिस डेटा लोडर। तो अब डेटा लोडर कैसे इंस्टॉल करना, डेटा लोडर के लिए क्या उसको इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या आपके ये चीजें रिक्वायर्ड है, आपके प्री रिक्विजिट्स क्या है, तो वो सब चीजों पर डिस्कशन करते हैं, फिर एक्चुअल पे आएंगे।
तो देखिए, इससे पहले कि आप डेटा लोडर इंस्टॉल करो, आपको हाँ, एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, अब हो सकता है मैं शायद इस पॉइंट पे गलत भी हूँ, तो ये तो मुझे आप ही बता सकते हो। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि डेटा लोडर विंडोज 10 पे ही लगता है। शायद विंडोज 10 के नीचे के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे कि विंडोज 7 या एक्सपी वगैरह, तो ये मेरा ओपिनियन है, बिकॉज मैं एक दो जगह पे देखा हूँ ये कि डेटा लोडर उस पर इंस्टॉल नहीं होता है। बट ये मुझे आप ही बता सकते हो अगर आपके, क्योंकि मैं विंडोज 10 ही यूज कर रहा हूँ काफी वक्त से, तो मुझे इस चीज का पूरी तरह से अंदाजा नहीं है। और मेरे पास फिलहाल कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसपे कि विंडोज 7 वगैरह हो, जाके मैं उसमें इंस्टॉल करके देख सकूं। तो ये है शायद मेरा अंदाजा। आप करके देखना, अगर आपके पास विंडोज 7 या एक्सपी कुछ है, उस पर आप डेटा लोडर इंस्टॉल करके देखना और ये देखना कि वो काम कर रहा है क्या। अगर वो काम करता है तो प्लीज आप मुझे भी बता दीजिएगा, ताकि फिर मैं अगली बार ये सेंटेंस बोलने से बच जाऊं, है ना। तो एक ये चीज है जो शायद मेरे ऑब्जर्वेशन में है। दूसरा, जो आप जब भी डेटा लोडर इंस्टॉल करेंगे, तो डेटा लोडर इंस्टॉल करने से पहले आपको जेडीके एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना पड़ता है, बिकॉज दिस वन इज अ जावा सपोर्टेड काइंड ऑफ टूल। एक्चुअली सेल्सफोर्स के अंदर की जो प्रोग्रामिंग है ना, वो जावा में है, और ये एक फैक्ट है। सेल्सफोर्स का जो इंटरनल मेटा डेटा और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है, वो जावा, जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी, इस पे काम करता है। इवन द लाइटनिंग ऑल्सो, लाइटनिंग एलडब्ल्यूसी जो फॉर्मेट है, लाइटनिंग तो खैर ऑरा पे है, ऑरा इज अ सेपरेट कंपोनेंट, बट एलडब्ल्यूसी जो है, वो आपका जावा स्क्रिप्ट के ऊपर काम करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जावा पढ़ लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो जावा नहीं है, हम जावा के आगे की चीजें पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर में क्या चल रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना है, वो तो सेल्सफोर्स और जावा के बीच का इंप्लीमेंटेशन है। हम जो कर रहे हैं वो एक अलग चीज होती है, हम सिर्फ अपेक्स पढ़ते हैं और अपेक्स बहुत अलग होता है। तो ये एक चीज होती है। तो इसीलिए आपको, इससे पहले कि आप डेटा लोडर इंस्टॉल करें, यू एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर टू इंस्टॉल द जेडीके। तो जेडीके इंस्टॉल करने के लिए आई हैव गिवन दिस वेबसाइट, है ना, ये आप गूगल नहीं करो, आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस वेबसाइट, यू नीड टू गो विद दिस। आप ये वेबसाइट पे जाइए, दिस इज वन ऑफ द गुड वेबसाइट्स, जहाँ पर आपको जेडीके का जो लेटेस्ट वर्जन है, यू आर गोइंग टू गेट द एंड सी हाउ डज। अभी तो उस वक्त 11 था शायद, क्या था, अभी पता नहीं कौन सा आ गया है, बिकॉज दिस कीप्स ऑन द चेंजिंग। सो इफ आई स्क्रॉल इट अ लिटिल बिट डाउन, I'm going to get this. Download the Azul Zulu builds for OpenJDK. JDK stands for Java Development Kit. So you, for the Windows, for the Windows, see, it all depends on your operating system. For x86 मतलब पुराने वाले, 64 मतलब नए वाले. So you have this, you have this. For JDK, it's what the version? JSC 17 probably. ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ लेटेस्ट वर्जन। तो आप यहाँ से इंस्टॉल करो इसको। अच्छा, इंस्टॉलेशन के भी दो ऑप्शंस होते हैं, तो डोंट गो विद द जिप। आप जिप करोगे तो आपको पाथ देना पड़ेगा। बेटर यू डायरेक्टली गो विद द डॉट एमएसआई। एमएसआई स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर फाइल। ठीक है, तो आप जब भी इसको डाउनलोड करेंगे, गो विद द लेटेस्ट, और लेटेस्ट हमेशा ऊपर रहता है यहाँ पे। ठीक है, आप नीचे जाएंगे तो आपको काफी सारे वर्जन मिल जाएंगे। यहाँ 15 वाला वर्जन है, देखो, दिस इज अ काइंड ऑफ ओल्ड वर्जन, 17 वर्जन आया, एंड देन 17.35, दिस इज समथिंग विच इज न्यू। तो 17 point, this is the build number, 17.28.30. So this one is the latest version. So depending upon your operating system and depending upon the processor you are having, ठीक है, probably you need to go with this option. JDK डाउनलोड करना है आपको, JRE नहीं, रन टाइम एनवायरमेंट, JDK बोल रहा हूँ, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, JDK। So you need to go with this website and probably this is the first option जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट एमएसआई फाइल करो तो इंस्टॉलर आ जाता है अपने आप में, एंड इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। वो इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स है, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो वो कर लेता है। बिकॉज आई ऑलरेडी हैव इंस्टॉल, तो मैं आपको ये स्टेप्स तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट हाँ, ये इसको इंस्टॉल कैसे करना, और आप शायद किया होगा आपने सब चीजें। और ये सब बस क्लिक टू द नेक्स्ट वाली स्टेप्स रहती हैं, आप क्लिक करते जाओ, इट एक्चुअली हैपेंस एवरीथिंग, अपने आप ही चलता है। दिस फाइल इज प्रोबेबली अराउंड 170 MB का है, ये 170 180 MB के आसपास का फाइल है ये प्रोबेबली। मैंने काफी पहले डाउनलोड किया था इसको। तो ये सब शायद मैंने तब देखा था, इट्स अराउंड 170 180 MB के आसपास है ये फाइल। मतलब इफ आई क्लिक दिस, लेट मी सी, सो इट्स अराउंड 164 MB के आसपास है ये, है ना, यू कैन सी नाउ। तो जस्ट डाउनलोड दिस एंड इंस्टॉल इट। आप इसे डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें, ये पहला आपका स्टेप रहेगा। आफ्टर दिस, जब आपका ये हो जाए, तो सेकंड ऑपरेशन कैसा है कि फिर नाउ यू नीड टू डाउनलोड दिस डेटा लोडर। आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस, आपका डाउनलोड भी हो जाए और इंस्टॉल भी हो जाए, तो उसके बाद में आप डेटा लोडर इंस्टॉल करो। तो अब डेटा लोडर कैसे इंस्टॉल करेंगे सर, हमको डेटा लोडर टाइप करना चाहिए, एंड वी एक्चुअली गो विथ लाइक दिस इंस्टॉल
डेटा लोडर इन द सेल्सफोर्स, ऐसा कुछ करना चाहिए क्या हमको, कोई लिंक है क्या इसकी भी, जैसे मैंने ये लिंक दिया, तो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। डेटा लोडर इज इंस्टॉलेशन का जो डेटा लोडर दैट इज ऑलरेडी देयर। डेटा लोडर ना आपके ही और के अंदर है। डेटा लोडर इज ऑलरेडी देयर इनसाइड योर और, आपके और के अंदर ही है डेटा लोडर। दिस इज द नेविगेशन आई हैव गिवन। गो टू सेटअप द सेम नेविगेशन, डेटा मैनेजमेंट के अंदर ही डेटा लोडर है। तो डेटा मैनेजमेंट के अंदर ही, इफ यू वांटेड टू सी डेटा मैनेजमेंट के अंदर ही हमारे पास में डेटा लोडर का ऑप्शन है, डेटा लोडर सी, दिस इज द ऑप्शन। यहीं से इंस्टॉलेशन होगा आपका, आपको गूगल नहीं करना है इसको, और किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी इंस्टॉल नहीं करना है, बिकॉज फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट का कोड जो रहता है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं रहता है। हमें नहीं पता कि इसके कोड के साथ वो क्या और इंस्टॉल कर रहा है हमारे सिस्टम में। तो गो विद द ऑथेंटिकेटेड प्रोसेस, और वो ये है कि आप सिर्फ जेडीके इंस्टॉल करो। ये इसके अभी अजूल जो है ये ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है, इसलिए यहीं से करो, इसलिए मैंने लिंक दिया आपको, ताकि आप कोई XYZ वेबसाइट पे ना जाओ, ठीक है। उसके बाद डेटा लोडर इंस्टॉल करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, डेटा लोडर आपके पास ही मौजूद है। उसका जो इंस्टॉलेशन का चैनल है वो ये है, डेटा लोडर। आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लेवर पूछेगा कि आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। यू हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल द डेटा लोडर फॉर विंडोज या डाउनलोड द डेटा लोडर फॉर मैक। तो आपके पास में विंडोज या मैक जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको इंस्टॉलेशन की स्टेप चाहिए तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। विंडोज की है या मैक की है तो ये, तो यू डाउनलोड दिस, आप इसको डाउनलोड करिए, यू क्लिक ऑन दिस, इट विल स्टार्ट द डाउनलोडिंग, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी, और उसके बाद एक जिप फाइल क्रिएट होता है, उसको आप एक्सट्रैक्ट करें, और आप उसको एक्सट्रैक्ट करें, उसके बाद में फिर इंस्टॉल करें। तो आफ्टर द इंस्टॉलेशन ये एक ऐसा आइकन आपके क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वन आइकन इज क्रिएटेड ओवर हियर, ठीक है। तो ये होता है डेटा लोडर का इंस्टॉलेशन, पहली चीज। नाउ इफ आई इंस्टॉल डेटा लोडर, अब मैं डेटा लोडर इंस्टॉल कर चुका हूँ, सो व्हाट ऑपरेशन आई कुड परफॉर्म, ठीक है। आई कुड परफॉर्म दिस ऑल इंसर्ट अपडेट, ठीक है। आई कुड परफॉर्म दिस ऑल इंसर्ट अपडेट, जो भी ऑपरेशन है ये सारे ऑपरेशन, इंसर्ट अपडेट डिलीट, आई कुड एक्सपोर्ट ऑल, अपसर्ट और हार्ड डिलीट, दीज आर द 7 ऑपरेशन दैट आई कुड परफॉर्म। तो ये मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ, उसके पहले मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, मैं चाहे इंसर्ट का बटन दबाऊं, ठीक है, चाहे मैं अपडेट का बटन दबाऊं, चाहे मैं अपसर्ट दबाऊं, मैं कोई भी बटन दबाऊं, आई फर्स्ट रिक्वायर टू लॉग इन, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉग इन के 2 तरीके होते हैं, ओ ऑथ, ठीक है, और दूसरा होता है आपका पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। ओ ऑथ अभी आपसे जमेगा नहीं, क्योंकि आपने अभी इंटीग्रेशन नहीं किया एंड यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट द कनेक्टेड ऐप। आफ्टर द कनेक्टेड ऐप यू विल प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि ओ ऑथ क्या होता है। अभी आई विल गो विद द सेकंड टेक्निक, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। अब आप सोचो कि ये बहुत सिंपल है, मेरा आईडी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, आई जस्ट नीड टू एंटर माय पासवर्ड, ठीक है, आई जस्ट नीड टू एंटर माय पासवर्ड, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, इफ आई एंटर माय पासवर्ड, ठीक है, इफ आई एंटर माय पासवर्ड ओवर हियर, ठीक है, दिस इज माय पासवर्ड, तो ये नहीं लॉगिन देगा, ठीक है। यूजर नेम एंड पासवर्ड एरर, चेक द यूजर नेम एंड पासवर्ड, व्हाई, क्योंकि मैंने सिर्फ पासवर्ड डाला है। तो अब भाई यूजर नेम पे यूजर नेम डाल रहा हूँ, पासवर्ड पे पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो फिर एंटर क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके लिए एक बात है यहाँ पे, अलॉन्ग विद द पासवर्ड सिक्योरिटी टोकन भी एंटर करना पड़ता है। तो ये सब मैंने लिखा हुआ है, डोंट वरी, एवरीथिंग हैज बीन रिटन। हाउ टू लॉग इन, हाउ टू इंस्टॉल, ठीक है, ऊपर है हाउ टू इंस्टॉल, ये ऊपर में आपका फ्लेवर्स वगैरह, ठीक है। CSV फाइल कैसी रहनी चाहिए, डेटा लोडर इंटरनली जो है कितना प्रोसेस करता है, ये बैच प्रोग्रामिंग हो जाए तब ये पॉइंट पे आऊंगा मैं, अभी आप पढ़ो मत इसको। आफ्टर द बैच प्रोग्रामिंग आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट एंड आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये अभी मत पढ़ो, कुछ चीजें अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, कुछ चीजें ऐसी जो मैं बैलेंस रखता हूँ फिर आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। ओ ऑथ ऑथेंटिकेशन कैसा होता है, जिसमें क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट पास करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, व्हेन यू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड ऐप तब आपको ये मिलता है, अभी नहीं मिलता। लेट मी शो यू, एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, लेट मी शो यू दैट, ठीक है। So I have these all, let me open any of this and migration tool. एक कनेक्टेड ऐप खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा तब जाके दिखा पाऊंगा। ठीक है, क्रिएट एप्स, लेट मी क्रिएट अ कनेक्टेड ऐप, ठीक है। I'll create a connected app
उसके बाद में आपको कुछ बता पाऊंगा। सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, बस और कुछ नहीं। आई एम गिविंग जस्ट वन आइडिया। योर बैच इज व्हाट? बैच क्या है आपकी? 105। 105। योर बैच इज 105। and then enable OR settings. Access. Call back here. Let me just show you something. मतलब कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ मैं। Let me try. अभी मेरे पास कोई कनेक्टेड ऐप है नहीं तो डायरेक्ट हो गया होता था। पता नहीं क्या ले रहा है यार। What it is taking. Invalid protocol. ये भी नहीं ले रहा। ठीक है, देखो। सो आई जस्ट नाउ क्रिएटेड वन ऑफ द कनेक्टेड ऐप। अब ये क्या होता है, किस लिए यूज होता है, वो सब बात की बात है। हियर यू कैन सी टू थिंग्स, कंज्यूमर की, ठीक है, और दूसरा कंज्यूमर सीक्रेट, क्लिक टू रिवील, ठीक है। नाउ आई हैव टू कोड्स, दो कोड्स हैं मेरे पास में। ये कंज्यूमर की कहलाता है और दूसरा कहलाता है कंज्यूमर सीक्रेट्स। तो व्हेनेवर वी गो विद दिस, व्हेनेवर वी गो विद दिस द OAuth ऑथेंटिकेशन, तो अगर हम सेकंड प्रोसेस पे जाते हैं, OAuth पे जाते हैं, तो अगर हम OAuth ऑथेंटिकेशन पे जाते हैं, ये वाला, जो मतलब इफ आई गो विद दिस ऑथेंटिकेशन, तो मेरे को along with this username and the password, I actually require to present two more things. I require to present the consumer keys and I also require to present the consumer secrets. ठीक है, इसी पर मेरा API फायर होता है। तो ये आप पढ़ने वाले हो ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन भी। अगर आप आगे कंटिन्यू करते हो तो ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन यू विल लर्न दिस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर की एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर सीक्रेट। ये दो ऐसी चीजें जो सेल्सफोर्स जनरेट करता है, रैंडम जनरेट होता है, सेल्सफोर्स के पास होता है। एंड व्हेनेवर वी हिट एनी API, तो API हिट करने के लिए तो हमको दो चीजें सेंड करनी पड़ती है, ठीक है। एक होता है कंज्यूमर सीक्रेट, दूसरा कंज्यूमर की, अलॉन्ग विथ योर यूजर नेम एंड द पासवर्ड। तो ऐसे 4 से 5 पैरामीटर होते हैं जो OAuth ऑथेंटिकेशंस में लगते हैं। सो OAuth ऑथेंटिकेशन जो होता है उसमें 3 से 4 चीजें सप्लाई करनी पड़ती है। तो मैं ऑब्वियसली वो नहीं जाने वाला हूँ, है ना। मुझे जो यहाँ पे अभी मैं सिंपल रखना चाहता हूँ इस प्रोसेस को, तो सिंपल रखने के लिए मैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे जाता हूँ। बट मैं अगर अपना पासवर्ड डाल भी रहा हूँ यहाँ पे तो भी मेरे को लॉगिन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अलॉन्ग विद द पासवर्ड सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको एक और चीज चाहिए। तो अगर आप OAuth पे जाते हो, तो OAuth जो होता है उसमें अलॉन्ग विद द यूजर नेम एंड द पासवर्ड आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट का कंसेप्ट होता है। लेकिन अगर आप पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे जाते हो तो आपके जो सेल्सफोर्स के क्रेडेंशियल्स है, यानी आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, उसके साथ एक और चीज होती है। पासवर्ड आपका एक्चुअली वो वाला पासवर्ड नहीं रहता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर पासवर्ड प्लस द सिक्योरिटी टोकन दैट इज गिवन टू यू फ्रॉम द सेल्सफोर्स। तो यू शुड नो हाउ टू जनरेट द सिक्योरिटी टोकन, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे?
दीज आर द स्टेप्स, डोंट वरी। नोट्स एकदम क्लियर कट है, नोट्स एकदम ही क्लियर कट है, आपको मैं बता रहा हूँ। आप बस एक स्टेप बाय स्टेप नोट्स पढ़ेंगे, आपको सब मिल जाएगा। मतलब किसी ने अगर ये वीडियो नहीं देखा और सिर्फ नोट्स भी फॉलो किया तो भी उसके समझ में आ जाएगा टॉपिक, ठीक है। सो तो माय पासवर्ड जो मुझे यहाँ एंटर करना है, द काइंड ऑफ पासवर्ड व्हाट आई रिक्वायर टू एंटर ओवर हियर, ये पासवर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, ये पासवर्ड में दो चीजें होती है, माय पासवर्ड along with the security token that is being given to me from the Salesforce. तो टू गेट द सिक्योरिटी टोकन है ना, आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है, एंड दिस सिक्योरिटी टोकन विल बी सप्लाइड टू ऑन योर ईमेल आईडी। तो ये बैच का जो ईमेल आईडी है, मुझे सबसे पहले वो ईमेल आईडी ओपन करना पड़ेगा। आई नीड टू ओपन दिस 105 जो ईमेल आईडी है आपका, ठीक है, 105 ही है ना, 110, अच्छा ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। I'll change this, no problem. So 105 जो ईमेल आपकी बैच है, उसका जो ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पे सप्लाई करता हूँ, आई एम गोइंग टू सप्लाई दैट, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको वो ईमेल आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक एवरीथिंग एज मार्क एज द रीड। तो हाउ टू जनरेट द सिक्योरिटी टोकन, हाउ टू जनरेट द सिक्योरिटी टोकन, क्योंकि मुझे पासवर्ड के साथ ही साथ वो पेस्ट करना है, ठीक है, पासवर्ड के साथ ही साथ वो मुझे पेस्ट करना है। तो उसके लिए ये लॉगिन है आपका, ये आपका नेविगेशन से आप यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू गो टू दिस, आप जाइए कनेक्टेड, यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू गो टू दिस नेम, देन गो टू माय सेटिंग्स, ठीक है, गो टू माय सेटिंग्स, ठीक है, माय सेटिंग्स में पर्सनल पे जाइए, एक्सपैंड करिए, हियर यू डायरेक्टली हैव वन ऑफ द लिंक, रीसेट माय सिक्योरिटी टोकन, सी यू डायरेक्टली हैव दिस ऑप्शन, रीसेट माय सिक्योरिटी टोकन, ठीक है, आप इसको क्लिक करें। So it will ask that, after you reset your token, you sent your old token API application, okay छोड़ो, कुछ और देखते हैं, reset my security token, अब देखो, हाँ ये पढ़ो, we sent a new security token to the email address of your account, to the email address of your account, है ना, we have sent a new security token, कौन सा email address है आपका, ट्रेनिंग फोर्स 105, इस email ID पे आपको हमने सिक्योरिटी टोकन भेज दिया है। सो लेट मी गो टू दिस, ठीक है, support@salesforce.com से ईमेल आ गया मुझे, एंड दिस इज माय सिक्योरिटी टोकन, दिस इज माय सिक्योरिटी टोकन, सी दिस इज माय सिक्योरिटी टोकन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम कॉपिंग दिस, ठीक है, go to my credentials for your batch 105, if this is, if this is my email id, this is my password, so along with the password, ठीक है, अब यहाँ पे there is a concept of security token, this is the security token what I have received from the Salesforce, ठीक है, this is the token what I have received from the Salesforce। तो अभी मुझे कैसे ऑथेंटिकेशन करना है, अब आप ऑथेंटिकेशन की स्टेप्स देखो, नाउ सी द ऑथेंटिकेशन स्टेप्स। तो सबसे पहले आई विल कॉपी माय ईमेल एड्रेस, ठीक है, let's go to the data loader, I wanted to perform the insert operation with the password authentication, so first of all paste here, now your password consists of two things, ठीक है, ये along with ये, तो what I'm going to do is that मैं उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, I'll paste it over here, and this becomes my password to log in into the data loaders, password plus authentic आपका security token, this becomes the password of data loader। तो अब आप ये चीज जो है यहाँ पर एंटर करो, and now try to log in, okay. Once again, let me open the instance. I think I first require to log out. ठीक है, log out. Now let me log in into this training 105 this year. Now it has taken. Now this is the password. Login. Login successful. See, आगे लिख के यहाँ पे login successful. Login successful. ठीक है. Click the next button. Now whatever you wanted to insert. ठीक है, वॉट एवर यू वांटेड टू इंसर्ट आप यहाँ से लोगे। तो पहले मैं सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट ऑपरेशन बता देता हूँ। एक्सपोर्ट ऑपरेशन ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब एक्सपोर्ट में आपको फाइल मिल जाती है। सो फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू एक्सपोर्ट द डेटा फ्रॉम हायरिंग मैनेजर, तो यहाँ पे आपको सारी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होती है। अब आप सोचो कि इतनी तो ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें देखा जाए तो बहुत सारी ऑब्जेक्ट है हमने, और हमने बोला भी कि सेल्सफोर्स डेटा लोडर में आपको सारी चीजें दिखती हैं, तो यहाँ तो सारी ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रही। एक्चुअली दीज आर द ऑब्जेक्ट वी हैव रिसेंटली यूज्ड, जो रिसेंटली यूज किए। तो सारी ऑब्जेक्ट देखना है तो क्या, देयर इज अ चेक बॉक्स, शो ऑल ऑब्जेक्ट्स, आप इसको क्लिक करो। अब आपको यू विल गेट द लिस्ट ऑफ, यू आर गोइंग टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारी,
अब ये सारी ऑब्जेक्ट लोड हो गई यहाँ पे, ठीक है, सारी ऑब्जेक्ट। तो ये लिस्ट काफी लंबी हो जाती है। सो मैं इसको वापस वो कर देता हूँ। आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन हायरिंग मैनेजर। हायरिंग मैनेजर से मुझे एक्सपोर्ट करना है डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो टू द हायरिंग मैनेजर and let me see how many records are all there inside the hiring manager. So I'll click this go button. 1 out of 12 of 12. So there are 12 records, है ना, 12 एक्सट्रैक्शन चाहिए मुझे। सो सिलेक्ट द हायरिंग मैनेजर। जहां से भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है, यानी यू आर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, और वो एक सीएसवी में आपके पास में आने वाला है। चलो, तो हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट मैंने एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो कहाँ स्टोर करना है, गिव एनी लोकेशन। सो गिव एनी लोकेशन। सो मैं काम करता हूँ फर्स्ट क्रिएट फोल्डर्स इनसाइड दिस। मैं फोल्डर्स बना लेता हूँ 105। यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग फ्यू ऑफ द फोल्डर्स। यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बना लेता हूँ। डेटा लोडर एग्जांपल्स, इसके अंदर एक फोल्डर और बना लूँ। एक्चुअली सक्सेस एरर फाइल्स जनरेट होती हैं, तो वो सक्सेस डैश, सक्सेस एरर फाइल जनरेट होती है, तो उसको यहाँ रूट पे ना स्टोर करते हुए एक अलग फोल्डर में स्टोर कर लेता हूँ। चलिए, सो नाउ आई वांटेड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट का। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप उसे कहाँ स्टोर करोगे और उसको नाम क्या दोगे। तो मैं नाम भी बताता हूँ कि नाम क्या दूंगा। HR मैनेजर एक्सट्रैक्ट नंबर 1, ठीक है। आई एम एक्सट्रैक्टिंग या एक्सपोर्ट नंबर 1। एक्सट्रैक्ट क्यों बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोल देते हैं, एक्सपोर्ट नंबर 1, ठीक है, .csv। लेकिन मुझे कहाँ स्टोर करना है। सो लेट मी ब्राउज दिस। तो आई वांटेड टू गेट इट स्टोर्ड इनसाइड 105 में। जस्ट नाउ वी क्रिएटेड वन फोल्डर, डेटा लोडर, ठीक है, ओपन, ठीक है। और यहाँ पे विद दिस नेम HR मैनेजर एक्सपोर्ट नंबर 1 .csv देना जरूरी है, वरना वो फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ओपन नहीं होगी। So .csv is the extension. With this expansion, with this name, let me save this. तो इसने पूरा पाथ ले लिया यहाँ पे, D ड्राइव में ये फोल्डर उसके ये नाम, ठीक है। तो hiring manager object is going to be extracted on this location with this name of file. Let me press this next button. कौन कौन सी fields आपको extract करना है ना, what are the fields you wanted to extract। तो सारी fields यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। Out of that, what are the fields you wanted to extract। So I wanted to extract, like इसको बड़ा नहीं होता ये, I want to extract the contact number, HR email ID, HR ID, location also, name also। बाकी ठीक है, बाकी कुछ नहीं। allotted positions क्या है मेरा ये। anyway let me extract this also। हायरिंग मैनेजर को कौन सी पोजीशन दी है, प्रोबेबली ये है वो। अच्छा ये अच्छा ठीक है। एनीवे ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक एसक्यूएल क्वेरी अपने आप फॉर्म हो जाती है। तो ये दिखने के लिए आपको ऐसा यूजर इंटरफेस है, बट एक्चुअली पता है ये इंटरनली भी बैच प्रोग्रामिंग और एसक्यूएल से काम करता है। एसक्यूएल से ही काम करता है, मतलब जो चीज कल्चर के तुम प्रोग्रामिंग पे सीखने वाले हो ना, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो ये कैसा है कि ये एक्चुअली दिखने के लिए यूजर इंटरफेस है, बट कहीं ना कहीं ये इंटरनली ना प्रोग्रामिंग ही चलती है। तो यहाँ पे आप जो जो फील्ड आप सिलेक्ट करते गए ना, वो फील्ड यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी फॉर्म हो गया। सिलेक्ट अलॉटेड पोजीशन, कॉन्टैक्ट नंबर, HR ईमेल आईडी, एंड दिस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट, ऐसा। एंड इफ यू वांटेड टू ऐड सम कंडीशन, वेयर क्लॉज है इसका, ये आप पढ़ोगे आगे चल के। तो आप वेयर कंडीशन जो है आप ऐड कर सकते हो, कुछ कंडीशन वगैरह। मैं फिलहाल मैं सिंपल रखता हूँ इसको, आई डोंट वांट टू ऐड एनी कंडीशन। लेट मी गो विद दिस एंड फिनिश, ठीक है। तो यू हैव चूजन टू परफॉर्म एन एक्सपोर्ट, आपने एक्सपोर्ट परफॉर्म किया है। डू यू वांट टू प्रोसीड, यस आई वांटेड टू प्रोसीड, ठीक है। ऑपरेशन इन प्रोग्रेस, एक्सट्रैक्टिंग। The operation was fully completed. There was 12 successful extraction. 12 चीजें इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब यहाँ से व्यू मत करो, सिर्फ ओके करो, इसको डन करो, एंड यू हैव द फाइल ओवर हियर। तो हमने देखा कि हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट में वी हैव 12 डेटा, 12 रिकॉर्ड्स, दैट ऑल रिकॉर्ड्स हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। ये आके आपके CSV में तैयार है। नाउ ओपन दिस CSV फाइल, ठीक है। ओपन दिस CSV फाइल। So I have this CSV फाइल। अभी मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, so that it will looks good to us। format that
कहाँ गायब हो गया यार? एनीवेज सो चलो मैं मैनुअली ही कर लेता हूँ इसको. Yes. So now you can see that allotted position भी आ गया, contact number की values भी आ गई, and if you wanted we can perform certain type of like this. तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, these are what, these are the fields name. ये आपकी सारी fields name है. These all are the fields, and these are like HR पोजीशन नेम जो भी है HR में. अच्छा, हायरिंग मैनेजर है, पोजीशन नहीं है. सो हायरिंग मैनेजर नेम यहाँ पर आ गया, उसका लोकेशन क्या है यहाँ पर आ गया, उस रिकॉर्ड का आईडी क्या है वो आ गया, और HR का आईडी जो अपन ने एक ऑटो नंबर फील्ड बनाया वो उसका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, और कितनी पोजीशन अलॉटेड है. सो दिस इज हाउ वी एक्सट्रैक्ट डेटा. तो ये आपको कौन सा ऑपरेशन हुआ? एक्सट्रैक्ट ऑपरेशन हुआ. दिस इज एक्सपोर्ट ऑपरेशन, एक्सपोर्ट. अब एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑल के बीच का डिफरेंस मुझे आपको समझाना है तो मुझे आपको ये डिफरेंस समझाने के लिए एक्चुअली एसक्यूएल पे ऑल रोज क्लॉज होता है इसका, लेकिन यहाँ पे क्या होता है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ. अभी आप देख रहे हैं कि 12 रिकॉर्ड है. दीज आर 12 एक्सट्रैक्शंस, 12 एक्सट्रैक्शंस. तो मैं फिर से यही चीज करता हूँ. लेट मी क्लोज दिस फाइल. वांट टू सेव, डोंट सेव. ठीक है, 12 रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट हुआ है अपना. ओके, अभी 12 रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट हुआ. लेट मी ओपन एनी रिकॉर्ड. लेट मी ओपन एनी रिकॉर्ड. अभिनव शर्मा रिकॉर्ड. लेट मी डिलीट दिस. ठीक है, सो आई डिलीटेड वन रिकॉर्ड. अब मैंने डिलीट कर दिया. तो अगर अब मैं चेक करूं सो नाउ आई हैव 10 11. एक और डिलीट कर देता हूं चलो राउंड फिगर के लिए. सो आई डिलीटेड रिकॉर्ड. नाउ इफ आई चेक नाउ इफ नाउ आई चेक आई ओनली हैव 10 रिकॉर्ड्स. ठीक है, मेरे पास में 10 रिकॉर्ड्स हैं हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट के. लेट मी रिपीट द सेम प्रोसेस. मैं फिर से एक्सपोर्ट करता हूँ. कहाँ से एक्सपोर्ट करना है? आई वांटेड इट टू बी गेट एक्सपोर्टेड फ्रॉम हायरिंग मैनेजर. ठीक है, हायरिंग मैनेजर. गिव द नेम. I wanted this name. बेटर वहीं से उठा लूं, ब्राउज करता हूँ. HR मैनेजर एक्सपोर्ट नंबर 2 डॉट CSV. एक्सटेंशन देना याद रखना, एक्सटेंशन नहीं दिया तो दिक्कत जाएगी. सो HR मैनेजर एक्सपोर्ट नंबर 2. सेव इट. पाथ ले लिया इसने. नेक्स्ट. चलो फिर से ले लेते हैं. सो लाइक टू हैव दिस. थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको. सो आई वांटेड टू फेच द ID. Is the ID select ID. देखो अपने आप क्वेरी बन रही है. ठीक है, select ID and then name. ठीक है, and then location and then probably HR email ID. ठीक है, and the contact number. बस इतनी फील्ड्स में फेच करता हूँ, ज्यादा नहीं. Let me make the finish. Yes, operation in progress. ठीक है, 10 एक्सट्रैक्शन बिकॉज मैंने 2 रिकॉर्ड डिलीट कर दिए थे. सो नाउ आई हैव 10 एक्सट्रैक्शन. मेरे पास 10 एक्सट्रैक्शन है जो यहाँ पर आ चुके हैं. इफ आई ओपन दिस फाइल तो ऑब्वियसली इट विल हैव द 10 एक्सट्रैक्शन. तो यहाँ पर 10 एक्सट्रैक्शन हैं इसके पास में. क्या प्रॉब्लम है आज? अच्छा यार, CSV फाइल है. हाँ बराबर, CSV फाइल है तो ऐसा ही होगा. राइट. कॉलम विड्थ. एनीवेज, सो आई हैव 10 एक्सट्रैक्शंस. ठीक है, क्योंकि 2 रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिया. ये है आपका सिंपल एक्सपोर्ट ऑपरेशन. ये क्या है आपका? सिंपल एक्सपोर्ट. अब मैं इसी ऑपरेशन को रिपीट करता हूँ. लेट मी क्लोज दिस, डोंट सेव. ठीक है, अभी फिर से एक्सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं एक्सपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट ऑल करता हूँ. तो एक्सपोर्ट ऑल जो है ना, अगर मैं एसक्यूएल की बात करूँ तो यहाँ पर एक क्लॉज को यूज करता है ऑल रोज. ऑल रोज एक ऐसा क्लॉज है जो आपको डिलीटेड फाइल भी उठा के दे देता है. मतलब 2 रिकॉर्ड जो आपके डिलीटेड हैं वो भी आपको मिलेंगे यहाँ पे. मतलब 2 रिकॉर्ड जो आपके रिसाइकल बिन में पड़े हैं. इफ आई एक्सपैंड एंड गो टू रिसाइकल बिन, आई कुड सी दैट दीस 2 रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड. तो ये 2 डिलीटेड प्लस हायरिंग मैनेजर के अंदर के ऐसे मिला के आपके 12 रिकॉर्ड्स हैं. आप सिर्फ एक्सपोर्ट करोगे तो आपको वही रिकॉर्ड मिलेंगे. एक्सपोर्ट करेंगे आप तो वही रिकॉर्ड मिलेंगे आपको जो कि आपके ऑब्जेक्ट में है ना, दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट. लेकिन अब मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्सपोर्ट ऑल. ये डिफरेंस है. ये डिफरेंस पूछते हैं इसलिए बता रहा हूँ. सो आई वांटेड टू गेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हायरिंग मैनेजर वंस अगेन.
ठीक है, लेट मी ब्राउज दिस। एक्सपोर्ट नंबर 3, एक्सपोर्ट नंबर 3 डॉट CSV, ठीक है, डॉट 3 CSV। इस बार मैं एक्सपोर्ट ऑल कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट ऑल, नेक्स्ट। ठीक है, सिलेक्ट करो आपको कौन कौन सी फील्ड चाहिए। आई वांट द ID, नेम, लोकेशन, देन आई वांट this contact number also. Do we have any HR email ID? Finish. Okay. 12 एक्सट्रैक्शन देखो, 12। इसने क्या किया, इसने एक्चुअली फेच किया वो भी रिकॉर्ड जो कि आपके रिसाइकल बिन में थे। ठीक है, जो कि आपके रिसाइकल बिन में थे। ठीक है, वो भी रिकॉर्ड आपके फेच हुए हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल। अब मैं एक थोड़ा सा एक चीज भूल गया मैं आपको बताना, लेट मी डिलीट दिस। ठीक है, लेट मी वंस अगेन एक्सट्रैक्ट। मैं आपको फिर से एक चीज बताता हूँ यहाँ पे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। सो एक फील्ड थी, मैं आपको एक्सट्रैक्ट नहीं किया, लेट मी शो यू दैट। मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है। डॉट CSV, ठीक है। The next, let me now select the fields once again. तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे की एक रीजन है जो मैं is deleted, name, बस इतना ही रखता हूँ। Finish, 12 extraction, ठीक है। Okay, now let me go to this and open this file. देखिए, एक फील्ड होती है is deleted नाम की, there is a field called as is deleted। ठीक है, एक फील्ड होती है जिसका नाम होता है is deleted। ठीक है, is deleted नाम की एक फील्ड होती है। ये एक सिस्टम जनरेटेड फील्ड है। मतलब जैसे आप जब कोई रिकॉर्ड, हमने सीखा कि व्हेनेवर वी क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, तो कुछ फील्ड्स अपने आप क्रिएट होती है, ID, नेम, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, है ना। तो उसी में एक फील्ड है इज डिलीटेड, सिस्टम जनरेटेड फील्ड होती है। तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जो कि डिलीट हो चुका है, उसके लिए इज डिलीटेड की वैल्यू रहती है ट्रू। उसके लिए इस डिलीटेड की वैल्यू रहती है ट्रू, और बाकी सब के लिए इस डिलीटेड की वैल्यू रहेगी फॉल्स। ये कौन है, जो कि ऑब्जेक्ट में है और जो डिलीट नहीं हुए हैं। लेकिन जो रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं उसके लिए इस डिलीटेड की वैल्यू रहती है ट्रू। एक्चुअली जब भी आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हो ना, जब भी आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हो तो दिखने के लिए आपको रिसाइकल बिन में दिख रहा है, वो एक्चुअली कहीं नहीं है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही है। तो ये दो रिकॉर्ड जैसे अपने अभिषेक और अभिनव, दीज टू रिकॉर्ड, ये दिखने के लिए आपको रिसाइकल बिन में दिख रहे हैं और अगले 15 दिन तक यही दिखेंगे। आफ्टर 15 डेज ये हार्ड डिलीट होता है, आफ्टर 15 डेज ये हार्ड डिलीट होता है। ठीक है, लेकिन दिखने को रिकॉर्ड यहाँ दिख रहे हैं, बट ये ऑब्जेक्ट से कहीं नहीं जाता, इट विल देयर इनसाइड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ही रहता है। लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि उसके लिए इस डिलीटेड की वैल्यू क्या हो जाती है, ट्रू। तो इस डिलीटेड की वैल्यू ट्रू होने का मतलब ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, और ये फिलहाल कहां पर है, रिसाइकल बिन पे है। तो जब आप एक्सट्रैक्ट ऑल करते हो तो वो सारा रिकॉर्ड फ्रेश करता है, इवन जो तो इस डिलीटेड की वैल्यू फॉल्स है, और वो भी जिसकी इस डिलीटेड की वैल्यू ट्रू है। ये है एक्सपोर्ट ऑल, ये है एक्सपोर्ट ऑल। और जब आप एक्सपोर्ट करते हो, व्हेन यू ओनली एक्सपोर्ट, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तब ये जब करते हो ना, तब जो क्वेरी बनती है उसमें केवल वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं जिसकी इस डिलीटेड की वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो एसक्यूएल से ये अच्छे से समझ में आता है अपने को। और जब मैं एक्सपोर्ट ऑल करता हूं तो वैसी क्वेरी बनती है जिसमें इस डिलीटेड इक्वल्स टू फॉल्स एंड इस डिलीटेड इक्वल्स टू ट्रू। तो आपको ये भी रिकॉर्ड मिलता है, आपको ये भी रिकॉर्ड मिलता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल। ठीक है, ये डिफरेंस है बिटवीन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल एक्चुअली। ठीक है, आइए दूसरे कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं। एक दो ऑपरेशन बाकी आपके लिए मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ। सो इफ आई वांटेड टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड, अगर मेरे को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है इन द हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट, नाउ आई कैन सी दैट देयर आर ऑल टुगेदर 9 रिकॉर्ड्स ओवर हियर, है ना। यहाँ पे 10 रिकॉर्ड है। अच्छा, सो मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। इफ आई वांटेड टू इंसर्ट, तो इफ आई वांटेड टू इंसर्ट, तो उसके लिए मुझे एक CSV फाइल की जरूरत पड़ेगी। CSV, चूज द CSV फाइल। तो पहले आपको CSV बनानी चाहिए। चलिए CSV पे चलते हैं। इनमें से कोई भी एक मैं कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम कॉपिंग दिस, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक नई फाइल बन गई है। आई एम रीनेमिंग दिस फाइल, इसी को फाइल को रीनेम कर रहा हूँ। एंड लेट मी गिव दिस नेम टू बी एज द import1 या insert।
इंसर्ट वन, ठीक है। लेट मी ओपन दिस फाइल, इंसर्ट वन, ठीक है। डोंट वांट दिस कॉलम, डिलीट इट। कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए मेरे, मेल आईडी भी चाहिए। दिस आई डोंट वांट, डिलीट दिस। आईडी इसलिए नहीं दे सकते हम क्योंकि जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो आईडी जनरेट होती है, सिस्टम जनरेटेड है। ये फील्ड आप इंसर्ट में नहीं दे सकते, ठीक है। लोकेशन आप दे सकते हो और नेम आप दे सकते हो। लोकेशन पिक लिस्ट है, तो जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम मेकिंग सर्टेन चेंजेस ओवर हियर, ठीक है। आई एम मेकिंग सर्टेन चेंजेस ओवर हियर। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन दिस, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड। मैं कुछ यहाँ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेता हूँ। डेटा लोकेशन इंसर्ट रिकॉर्ड नंबर, ठीक है। 5 रिकॉर्ड में इंसर्ट करने वाला हूँ। पहला हैदराबाद लोकेशन के लिए, दूसरा पुणे लोकेशन के लिए, तीसरा नागपुर लोकेशन के लिए, चौथा प्रोबेबली वंस अगेन हैदराबाद लोकेशन के लिए, और फिर पुणे लोकेशन के लिए, ठीक है। सो आई एम इंसर्टिंग ऑल दिस रिकॉर्ड, ठीक है। डेटा लोडर 1, सेम नंबर, चलो सेम नंबर, ठीक है। तो दीज आर द 5 रिकॉर्ड्स आई एम गोइंग टू इंसर्ट। ये 5 रिकॉर्ड है, मैं इंसर्ट करने वाला हूँ। अभी हायरिंग मैनेजर पे आपके 10 रिकॉर्ड है, तो आफ्टर इंसर्टिंग दिस ये 15 हो जाएगा। सो हाउ टू इंसर्ट दिस, अब इससे हम बल्क इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बल्क इंसर्ट अपडेट ऐसे ही करते हैं, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे। एक दो ऑपरेशन सिखाऊंगा, बाकी आपको असाइनमेंट देनी है मैंने। सो विद दिस फाइल, लेट मी सेव दिस। मैंने फाइल सेव करी है एचआर मैनेजर इंसर्ट के नाम से। लेट मी क्लोज दिस फाइल, go to the data loader. I wanted to perform the insert operation. First of all, on which object you wanted to insert. I wanted to insert on the hiring manager. Now select from which file you wanted to insert. I wanted to insert from this particular file. Select the file, open, click the next, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अब इनिशियलाइजेशन, ये और इसने फाइल को इवैल्यूएट किया कि आपकी फाइल में 5 रिकॉर्ड्स हैं। आई क्लिक दिस ओके। अब यहाँ पे आपको फील्ड मैपिंग करनी पड़ती है। तो क्या होता है, फील्ड मैपिंग के लिए ही हमने एक्सपोर्ट करके पहले से फाइल बुला रखी थी, इसलिए मैंने पहले आपको इंपोर्ट से पहले एक्सपोर्ट बताया, ताकि हमको ऐसी फाइल मिले जिसकी जो फील्ड्स है, दीज आर ऑल द फील्ड्स ऑफ योर फाइल। ये जो आप फील्ड्स देख रहे हैं ना, दीज आर द, ये आपके फाइल के हेड है, ठीक है। वो सेम रहे आपके सेल्सफोर्स के हेड के साथ, अदरवाइज आपको अलग से मैपिंग करनी पड़ती है। तो ये एक बेनिफिट मिलता है, अगर आप पहले ही एक्सपोर्ट करके एक फाइल बुलवा लो, तो उसकी नंबर ऑफ जो फील्ड्स या फील्ड हेड्स रहेंगे, वो आपके सेल्सफोर्स की हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट के फील्ड्स के साथ मैच होते हैं। तो ये एक इंटेलिजेंट बात होती है कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो पहले एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट करके फाइल बुलवा लो, ताकि आपको हेड्स मिल जाए और आपकी मैपिंग आसान हो जाए, ठीक है। तो अब मैपिंग के 2 ऑप्शन है, चूज एन एक्सिस्टिंग मैपिंग। अगर पास में कोई मैप बनाया था, तो मेरे तो ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग दिस मैप, तो क्रिएट और एडिट द मैप, तो ये ऑप्शन अपने को लेना है, ठीक है। ये ऑप्शन लेना है। तो यहाँ पे फिर ऐसा है कि आपको अभी ये आपके सीएसवी के हेड्स हैं और ये आपके ऑब्जेक्ट के हेड्स हैं, हायरिंग मैनेजर के ऑब्जेक्ट की। तो आप ऐसा एक ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। बट जब आपने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके फाइल लाया है, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है ऑटो मैच द फील्ड्स कॉलम। अभी देखो यहाँ इसको किससे मैच करना, इसको किससे मैच करना, लोकेशन को किससे मैच करना, आप सिर्फ ऑटो मैच कर दो, उसने अपने आप ले लिया। फाइल के हेड्स और ऑब्जेक्ट के लेबल्स, ऑब्जेक्ट की नेम, ऑब्जेक्ट की फील्ड नेम, सब मैच हो गया अपने आप, ठीक है। मतलब ये डेटा यहाँ जाएगा, ये डेटा यहाँ जाएगा, ये डेटा यहाँ जाएगा, ये डेटा यहाँ जाएगा। प्रेस दिस ओके बटन, ठीक है। मैपिंग तैयार है, क्लिक द नेक्स्ट बटन, ठीक है। और अगर कोई एरर आता है तो कहाँ जाएगा, अगर कोई वो जाता, तो मैंने एक्चुअली इसके लिए फोल्डर बना रखा है ना, डेटा लोडर। आपका एक फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है अपना, तो अपन वो पाथ दे देते हैं इसको कि 105 के अंदर एक फोल्डर डेटा लोडर, उसके अंदर एक सक्सेस एरर का फोल्डर बना रखा है। उसके अंदर आप ये सारी चीजें जो भी है, सक्सेस फाइल और एरर फाइल, 2 फाइल जनरेट होती है। फिनिश, ठीक है। क्लिक ओके।
The operation was fully completed and there was 5 successful insert operation with 0 errors. ठीक है, व्यू सक्सेस वगैरह कुछ नहीं, ओके करो यहाँ से और इसको चेक करना है तो बेटर। हाँ, अब आपके सक्सेस एरर में 2 फाइल जनरेट हो चुकी हैं। सक्सेस में रहेगा रिकॉर्ड्स आईडी, एरर में कुछ नहीं रहेगा। सो बेटर यू गो विद दिस। कहाँ गया आपका ये, एंड गो टू हायरिंग मैनेजर एंड लेट्स नाउ रिफ्रेश दिस। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे 5 रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गए। ठीक है, 5 रिकॉर्ड्स आर नाउ इंसर्टेड। अपडेट ऑपरेशन कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, अपडेट डिलीट कैसे करते हैं बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अपडेट के लिए फिर से आपको सीएसवी फाइल पे जाना पड़ेगा। गो टू द सीएसवी फाइल, क्रिएट अ सीएसवी फाइल। ठीक है, एक सीएसवी फाइल आप परफॉर्म, एक जैसे मैंने इंसर्ट वाली सीएसवी को मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड आई एम पेस्टिंग इट ओवर हियर। ठीक है, इसको रीनेम कर देता हूँ, आई एम रीनेमिंग दिस टू अपडेट। ठीक है, आई एम रीनेमिंग दिस टू अपडेट। सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज दैट, सी अपडेट करता हूँ मैं इसको एंड लेट मी ओपन दिस। अपडेट कैसे करते हैं ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सो दिस इज प्रेजेंट सिचुएशन, दिस इज माय प्रेजेंट सिचुएशन कि फॉर एवरी रिकॉर्ड डेटा लोडर 1 2 अलग अलग लोकेशन है, तो मैं काम करता हूँ इन सबकी लोकेशन सेम कर देता हूँ फॉर ऑल 5 रिकॉर्ड। जो अभी मेरे 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे ओपन हुए। ठीक है, दीज आर माय 5 रिकॉर्ड्स, लेट मी सी द लोकेशंस ऑफ देम। एडिट कॉलम्स, locations also, I wanted to see the location, let me save this. ठीक है, now you can see for this record data loader 1 2 3 locations are different, locations for this is Hyderabad, Pune, Nagpur, ऐसा ऐसा different है। now I'm making everybody has to be आपके ये I'm making this all to be Hyderabad। बाकी ये दोनों की मुझे जरूरत नहीं, तो I can have them, either I can delete them। जरूरत नहीं है तो delete कर दो। बस मैं क्या चाहता हूँ कि with this name location should be updated। ठीक है, इन सब के locations update हो जाने चाहिए। that is what at all I want। so let me now save this file, save and close it, go with data loaders। what I wanted to perform, I wanted to perform the update operation। ठीक है, update operation on what I wanted it to perform on the hiring manager, with which file I have created one of the files with the name called as HR manager update operation for which batch। एक मिनट, बैच गलत लेगा तो गलत अपलोड होगा, बिकॉज ये सेम एग्जाम्पल डेटा लोडर एग्जाम्पल अब सही है। और अपडेट 1, ठीक है, ओपन द फाइल, क्लिक द नेक्स्ट बटन, 5 रिकॉर्ड्स यू आर गोइंग टू अपडेट इट। ओके, मैपिंग करनी है, पुरानी मैप नहीं, क्रिएट अ न्यू मैप, ऑटो फील्ड मैपिंग कर लो, ओके करो, नेक्स्ट करो, एरर सक्सेस का ऑलरेडी दिया हुआ है पाथ, फिनिश करो, यस करो। ठीक है, ऑपरेशन फुल्ली कंप्लीटेड विद 0 सक्सेसफुल अपडेट्स एंड 5 एरर। अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, वी हैव नॉट अपडेटेड, अपडेट नहीं हुआ है। आईडीज इंसर्ट करके देखता हूँ, लेट मी इंसर्ट द आईडीज। ठीक है, आईडी इंसर्ट करके देखता हूँ, हो सकता है आईडी भी देना पड़े मुझे। सो एक्सपोर्ट 1 पे मेरे पास में आईडीज हैं। इसको ओपन करता हूँ, आईडी देना पड़ेगा शायद मुझे। सो I don't want this also। अब मेरे पास 3 कॉलम्स है, I have the IDs, I have the locations and I have the name। ठीक है, I have the name। what I wanted to update, मुझे जिसको अपडेट करना है पहले मैं वो रिकॉर्ड्स लाता हूँ। ठीक है, I wanted to update this all location, so data loader insert 1। ठीक है, and then data loader insert 2, and then data loader insert number 3, and then data loader insert number 4, and data loader insert number 5। so तो होना चाहिए था, ये आईडीज की जरूरत तो नहीं पड़ती है इसमें, फिर भी आईडी सप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, इनकी मुझे आईडीज लगेंगे ना, आई शुड रिक्वायर द आईडीज ऑफ ऑल दिस। तो डेटा लोडर एक एक रिकॉर्ड लेना पड़ेगा मुझे। आई नीड टू ओपन दिस, सी द आईडी।
इंसर्ट 1 का आईडी ये है, ठीक है। इंसर्ट 2 का आईडी ये है। लेट मी सी विद दिस, अगर ये काम किया तो ठीक। insert 3, insert 3 का आईडी ये है, and then insert number 4, insert number 4 का आईडी, and then insert number 5 final, insert number 5, insert number 5 का आईडी ये है, ठीक है। And I wanted every of them to be become location as to be the Hyderabad. Now let me save and try with this. Update on what? Update on the hiring manager. Browse with the file. Update, open, next. Okay, map, okay, next, finish. Let me see this. There was 5 successful updates and 0 error. That means for update operation you require update, upsert और delete, तीनों के लिए ID लगता है। upsert के लिए भी नहीं, upsert के लिए नहीं लगता है। अपडेट और डिलीट ऑपरेशन के लिए यू रिक्वायर द आईडी। तो अभी हम चलते हैं वापस सेल्सफोर्स में, and let's go with this hiring manager, list of hiring manager. So all these records, देखो आप डेटा इंसर्ट, सबकी लोकेशंस क्या हो गई? The locations becomes the हैदराबाद, locations becomes the हैदराबाद। तो ये हो गया आपका अपडेट ऑपरेशन, ठीक है। अपसर्ट में क्या होता है? फॉर द ऑपरेशन फॉर हुज आईडी इज देयर, ठीक है। लेट मी शो यू दैट, और बता देता हूँ आपको, कंप्लीट ही कर देता हूँ आज इसको। चलो अपडेट ही लेता हूँ मैं फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड मैं नई क्रिएट करता हूँ, जैसे कि पुणे, ठीक है। नाउ आई वांटेड ऑल दीज रिकॉर्ड्स टू बी गेट अपडेटेड, ये हो गया अपडेट। और कुछ नए रिकॉर्ड जिनकी आईडी नहीं है, जो नए हैं वो इंसर्ट होंगे, जो पुराने हैं वो अपडेट होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज अपसर्ट ऑपरेशन। मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? डेटा लोडर 5, ठीक है। डेटा लोडर 5 ऑनवर्ड आप देखो, अभी आप 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। दीज आर फ्यू रिकॉर्ड्स जो 6 ऑनवर्ड जो है, 6 ऑनवर्ड एक्चुअली ना 6 ऑनवर्ड रिकॉर्ड जो है ये नए रिकॉर्ड में इंसर्ट कर रहा हूँ। मतलब ये एक ऐसी फाइल है जिसमें 2 तरह के रिकॉर्ड हैं। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हैं, पुराने जो रिकॉर्ड है जिनकी आईडीज हैं उन पे अपडेट हो जाएगा, और कुछ नए रिकॉर्ड है जिनकी आईडी नहीं है, जिनकी आईडी नहीं है वो क्रिएट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अपसर्ट ऑपरेशन। अपडेट प्लस इंसर्ट इज कॉल्ड एज अपसर्ट। दीज विल बी अपडेटेड, दीज विल बी इंसर्टेड, ठीक है। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। लेट मी सेव दिस फर्स्ट, go with the upsert operation on which object? Hiring manager object. Browse the file, update 1 फाइल पे किया मैंने चेंजेस, तो update 1 आई सेंड दिस। नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड है इसमें, बता रही है फाइल, वो बता रहा है 10 रिकॉर्ड है। सिलेक्ट द आईडी ऑफ द मैचिंग, किस पे बेस पे? आई वांटेड टू बेस्ड ऑन द आईडी। सिलेक्ट द फील्ड्स फॉर द मैचिंग, आईडी के ऊपर बेस मेरे को अपसर्ट करना है, तो आईडी एंड नेक्स्ट ऑटो मैच कर लो इसको, सेव करो, नेक्स्ट, फिनिश, ओके। 5 सक्सेसफुल अपसर्ट एंड 5 एरर्स। तो इंसर्ट नहीं किया शायद इसने, लेट मी सी दैट। अपसर्ट तो कर दिया इसने, इंसर्ट नहीं करा। लेट मी रिफ्रेश दिस लिस्ट। तो ये रिकॉर्ड्स आपके पुणे हो गए, पर नए रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया। नए रिकॉर्ड इंसर्ट क्यों नहीं किया इसने? कुछ फाइल में मिस्टेक किया क्या मैंने? लेट मी डिलीट दिस कॉलम, लेट मी ट्राई विद द नेम। नेम के ऊपर ट्राई करता हूँ, ठीक है। सो कौन सी लोकेशन है अपने पास? और दिल्ली भी है ना, DLH है। के ऊपर ट्राई करता हूँ। Upsert operation once again.
ऑन द हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट, फाइल सेव किया क्या मैंने, ऑन द फाइल अपडेट, ओपन, नेक्स्ट। ओके, इस बार नेम के ऊपर लेता हूँ, क्लिक द नेक्स्ट बटन, ऑटो मैच द कॉलम्स, सेव, नेक्स्ट, फिनिश। लेट मी नाउ सी। नहीं हो रहा है यार, देखता हूँ मैं क्यों नहीं हो रहा है। 5 अपसर्ट एंड 5 एरर्स, इंसर्ट नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद दिस, देखता हूँ मैं। ठीक है, मैंने भी बहुत सालों से, अरे यार डेटा बंद कर दिया, काफी वक्त से मैंने भी इस पे काम नहीं किया है। ठीक है, डिलीट एक आखिरी है, डिलीट बता देता हूँ आपको, शायद लॉगिन करना पड़ेगा फिर से। लॉगिन सक्सेसफुल, नेक्स्ट। ठीक है, डिलीट एक आखिरी है, डिलीट बता देता हूँ। डिलीट करने के लिए आपको सिर्फ आईडीज देनी पड़ती है ना, यू ओनली रिक्वायर टू गिव द आईडीज। हार्ड डिलीट मतलब, हार्ड डिलीट करोगे रिसाइकल बिन में जाएगा, हार्ड डिलीट करोगे पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो कुछ है क्या जिसमें आईडीज हैं अपने पास, सर्ट, एक्सपोर्ट, अपडेट वन फाइल पे जी, आई हैव दिस आईडीज, दीज आर द आईडीज ऑफ 1 to 5। ठीक है, डेटा लोडर 1 to 5, इनकी ये आईडीज हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई जस्ट वांटेड टू सप्लाई दी आईडीज, आईडी सप्लाई करनी पड़ती है, ये 5 आईडी में सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने अपडेट फाइल को, अब एचआर मैनेजर अपडेट में ही चेंजेस करती है। सो ये 5 आईडीज हैं अभी इस फाइल पे। अभी मैं डिलीट ऑपरेशन अटेम्प्ट करता हूँ, लेट मी डिलीट। और डिलीट और हार्ड डिलीट के बीच में जो फर्क है वो ये है कि आप डिलीट करोगे तो ये 5 रिकॉर्ड रिसाइकल बिन पे जाओगे, और हार्ड डिलीट कर देंगे आप, तो हार्ड डिलीट करने के बाद में रिजॉल्व रिकॉर्ड बिन को परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सो अपडेट वन जो है फाइल मेरी, उसमें मैंने चेंजेस कर रखे हैं, तो अपडेट वन फाइल मैंने फिर से लिया। ओके, नेक्स्ट, 5 रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहा है ये मुझे, आईडी को आईडी के साथ मैच कर लो। ओके, क्लिक द नेक्स्ट बटन, फिनिश, यस। आप उसको डिलीट करने जा रहे हो, उसकी वार्निंग दी इसने, और कुछ नहीं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। ऑपरेशन वाज फुल्ली कंप्लीटेड, देयर वाज 5 सक्सेसफुल एंड डिलीट्स एंड 0 एरर। तो आपका ऑपरेशन हो गया है। नाउ लेट मी गो टू द सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स में जाता हूँ, अभी ये मुझको रिकॉर्ड दिख रहे हैं। नाउ लेट मी रिफ्रेश दिस, आई रिफ्रेश, 5 रिकॉर्ड जा चुके हैं ना, 5 रिकॉर्ड जा चुके हैं आपके, एंड दीज रिकॉर्ड्स आर नाउ इनटू द रिसाइकल बिन। अगर आप यही हार्ड डिलीट करते तो वो पूरा डिलीट हो जाता था, रिसाइकल बिन से भी चला जाता था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डेटा लोडर्स, दिस इज व्हाट द डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, सो गो विद दिस थ्योरी, गो विद दिस थ्योरी, जितना भी थ्योरी है, एक एक बार सारे ऑपरेशंस की डिटेल भी है यहाँ पे, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो सारी चीजें हैं यहाँ पे। एक बार ये थ्योरी पढ़ लो अच्छे से, एंड परफॉर्म दी एग्जीक्यूशन। उसके पहले इंस्टॉलेशन अच्छे से कर लेना। ठीक है, इंस्टॉलेशन से पहले जेडी के इंस्टॉल करना, जेडी के इंस्टॉल करने के बाद डेटा लोडर इंस्टॉल कर लेना, एंड देन जनरेट द सिक्योरिटी टोकन। सिक्योरिटी टोकन को आप अपने पासवर्ड के साथ मिक्स कर दो। ठीक है, दिस इज योर पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड के आगे जो है आपका सिक्योरिटी टोकन होना चाहिए, और सिक्योरिटी टोकन अलोंग विद द पासवर्ड विल रिक्वायर यू टू द लॉगिन। ये सब चीजें करिए एंड हैव अ प्रैक्टिस ऑन दिस। ठीक है, ओके, लेट मी फर्स्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर डिस्कस करते हैं।